Hello and welcome. Welcome to the second learning session of chapter number 10 of Science 1, which is space missions. So far in this chapter, we looked at space missions, we looked at the need and importance of space missions, and we looked at artificial satellites. What are satellites? Those are objects which revolve around planets and don't revolve around sun. Okay, so those are called as satellites. The word artificial means it is made by humans. Okay, so whatever is made by humans and not made by the nature is known as artificial. So an artificial satellite is a man-made, a human-made object which revolves around the planet and not around the sun. Okay. Today we're going to look at orbits of artificial satellites. What are orbits? So we said artificial satellites are man-made objects which are going to revolve around planets, right? So revolve around planets मतलब क्या? सेम रास्ते पे बार बार चलते रहेगा. तो जो रास्ता है जिस पे बार बार चलते रहेगा सैटेलाइट उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. Okay. So we're going to look at three different types of orbits of artificial satellites: high Earth, medium Earth, and low Earth. This generally depends on height of the satellites. Okay, height अगर बहुत ज्यादा है तो high Earth orbit बोलेंगे. Height अगर कम है तो low Earth orbit बोलेंगे. Medium होगा तो medium बोलेंगे. So these are the topics that we are going to cover today. Our learning objectives for today will be: first, students will be able to explain the characteristics of different orbits of artificial satellites. तो ये जो अलग-अलग orbits है, high Earth, low Earth and medium Earth orbits, उनके सबके अलग-अलग characteristics है. उन सारे अलग-अलग characteristics तुम्हें explain करने आने चाहिए by the end of this learning session. The second learning objective is students will be able to derive the expression for critical velocity. Okay, we had learned something very similar in gravitation chapter, escape velocity. They sound the same, they sound very similar, but they are not the same. Okay, so escape velocity kya tha? The velocity that you need so that you don't come back to earth. Okay, earth की gravitational pull से तुम दूर चले जाओगे. So किस स्पीड से किसी भी चीज को फेंकना पड़े कि वापस वो नीचे नहीं आएगा अर्थ के ऊपर. That is escape velocity. Critical velocity is something different that we're going to learn today, and we also going to learn how to derive an expression for that for critical velocity. Okay, so these two are our learning objectives for today's learning session. So let us begin. All artificial satellites do not revolve in same orbits around the Earth. जो कोई भी सैटेलाइट हम एटमॉस्फेयर के बाहर भेज देते हैं तो सब के सब सेम ऑर्बिट में ही रहते हैं. उनका सबका रास्ता सेम नहीं होता, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं. The function of the satellite decide the height of the satellite's orbit from the Earth's surface. उसका क्या फंक्शन है, उस सैटेलाइट का काम क्या है, उस फंक्शन पे, उस काम पे डिपेंड करता है कि उसका हाइट क्या होने वाला है अर्थ के सरफेस के ऊपर. ओके, द नेचर ऑफ द ऑर्बिट भी उस पर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ द ऑर्बिट यानी सर्कुलर होगा कि इलिप्टिकल. ओके, वो सर्कल, उसका जो रास्ता है वो सर्कल की शेप में भी हो सकता है, इलिप्स की शेप में भी हो सकता है. वो भी क्या डिसाइड, वो कैसे डिसाइड होगा कि उस सैटेलाइट का काम क्या है, फंक्शन क्या है, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it. Okay, इक्वेटर के एकदम पैरेलल ऑर्बिट है या फिर उससे कोई एंगल बन रहा है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि उस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, काम क्या है. So to put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface. I did not read that sentence very well. I'm going to read that sentence again. Okay. To put the satellite in its proper orbit at specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using a satellite launcher. Okay, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ब्लू कलर इज दी अर्थ, ये हमारा अर्थ का सरफेस है. तो अर्थ के सरफेस से हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्चर ले लेंगे और सैटेलाइट लॉन्चर से हम हाइट h तक उस सैटेलाइट को लेके जाएंगे. ओके, दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है, then the satellite is given a specific velocity known as the critical velocity in a tangential direction to the orbit. Tangential direction is the most important word over here. Okay, so तुम लोग ने सैटेलाइट लॉन्चर से एक सैटेलाइट को यहाँ से अर्थ के सरफेस से ऑर्बिट के जो हाइट है वहां तक लेके गए. okay, वहां पे जाने के बाद उसको एक वेलोसिटी देना पड़ती है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, और वो टैंजेंशियल होता है ऑर्बिट के. तो हमारा ऑर्बिट देखो, और ऑर्बिट इज ओवर हियर इन सर्कुलर शेप. सर्कल का जो टैंजेंट होगा, टैंजेंट मतलब क्या, इट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. ओके, सो वी जनरली आस्क आवरसेल्व्स, राइट, हम लोग जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज कहाँ पे, यू कैन वेरी क्लियरली सी द यूजेस
of those chapter here in space missions. Okay, ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है अगर तुम्हें स्पेस मिशन पे काम करना होगा. सो वेन अभी सैटेलाइट लॉन्चर से हमने सैटेलाइट हाइट एच तक लेके गए. हाइट एच पे जाने के बाद वो जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देना पड़ेगा जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी दे देंगे तो ये इस ऑर्बिट में चला जाएगा. पर क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं देंगे तो क्या होने वाला है, तो ऑर्बिट में नहीं रहेगा, तो या तो नीचे आ जाएगा या फिर कहीं पे और उड़ जाएगा. आइदर ऑफ द टू कैन हैपन. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव द करेक्ट वेलोसिटी जिससे ऑर्बिट में चला जाएगा, एंड करेक्ट डायरेक्शन. सही डायरेक्शन में भी होना चाहिए. अगर डायरेक्शन गलत हो गया, टेंजेंशियल नहीं हुआ, तो भी वापस अर्थ में गिर सकते हैं, फिर दूर कहीं पे तो जा सकता है. सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है. ओके, if a satellite of mass m is revolving around the earth in an orbit of height h with speed vc, which is critical velocity, then as seen in the chapter on gravitation, a centripetal force m v critical square divided by r will act on it. So gravitation chapter में हमने centripetal force पढ़ा है, right? ऐसा बोल सकता था मैं, बट नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पोर्शन कट कर दिया because of the pandemic. So we haven't really learned the centripetal force का concept in gravitation chapter. We had skipped that concept. So it's okay even if you don't really know what centripetal force is. I'm going to make this very easy for you all. Okay, we are deriving critical velocity. कौन सा वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि वो इस ऑर्बिट में सेट हो जाए, या तो वापस अर्थ में गिरना नहीं चाहिए या फिर कहीं पे उड़ के जाना नहीं चाहिए. उसके लिए हमें कौन सा वेलोसिटी देना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन ढूंढना है हमें, राइट. और उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लगता है. सो विदाउट रियली नोइंग सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी वेल, इवन देन यू कैन learn this derivation very simply. Okay, all you need to know is हाउ इज द फर्स्ट स्टेप कमिंग. पहला स्टेप कैसे आ जाएगा ये तुम्हें समझ गया, तो बस दो ही स्टेप है, वो दो स्टेप तो काफी इजी है. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन इज कमिंग. अजम्पशंस तो यहाँ पे हो गए. ओके, सैटेलाइट का मास m है, हाइट h है अबाउ द अर्थ सरफेस, उसका स्पीड vc है, विच इज क्रिटिकल वेलोसिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अजम्पशंस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमारे हो जाते हैं. नेक्स्ट अभी तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन लिखने आना चाहिए. कैसे लिखोगे, देखो राइट हैंड साइड देखो. राइट हैंड साइड क्या है, जी एम एम बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर. कुछ याद आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, जी एम एम बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन. ओके, सो लेट मी टेक आउट माय पेन. ओके, let me choose a better color. Yes, so say for example your satellite is over here. Okay, यहाँ पे तुम्हारा satellite है. Let me draw that a little better. Okay, so if this is your satellite, तो ये क्या बोल रहा है, जी एम एम बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर. तो ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला. क्यों ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज अर्थ कहाँ पे है, अर्थ नीचे है, राइट. अर्थ यहाँ पे है. सो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को अर्थ नीचे खींचेगा यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसको एक फोर्स विच इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अर्थ की तरफ खींच रहा है. ओके, इट हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो सैटेलाइट है हाइट एच पे अबव अर्थ सरफेस, उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अर्थ की तरफ खींच रहा है. ओके, नाउ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ नीचे खींच रहा है, इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स होता है. ओके, इसको काउंटर करने के लिए एक और फोर्स होता है. इसको अगर नीचे जाना है तो इसको अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है तो नीचे जाना चाहिए, राइट. नीचे क्यों नहीं जाता, क्योंकि काउंटर फोर्स भी होता है, और उस काउंटर फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. ओके, सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इफ यू सी दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन आया. ओके, और यहाँ पे कौन सा ग्रीन लिया था मैंने, आई एम होपिंग ये ग्रीन लिया था. ये जो नीचे वाला ग्रीन वाला है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, जी एम एम बाय आर प्लस एच द होल स्क्वायर. अभी आर प्लस एच क्यों आ रहा है, यहाँ पे जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है, राइट. आर स्क्वायर के जगह पे ये लोग ने आर प्लस एच क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर है. देखो ये पूरा का पूरा आर है. सो यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, राइट, जिसको हम आर बोलते हैं. यहां से लेके यहां तक जो बचा हुआ डिस्टेंस है, दैट इज योर हाइट अबव अर्थ सरफेस. ओके, दिस इज योर कैपिटल आर.
एंड दिस इज योर स्मॉल एच। तो आर प्लस एच तुम्हारा स्मॉल आर हो जाता है, क्योंकि स्मॉल आर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ से गिना जाता है, राइट? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ हम हमेशा गिनते हैं। सो इंस्टेड ऑफ writing the small r they have written r plus h because r plus h is equal to small r. okay, इसलिए यहाँ पे r square के यहाँ पे small r square के यहाँ पे capital R plus h the whole square आ रहा है। Similarly यहाँ पे centripetal force is always equal to m, okay, let me not use this color, stick with the previous color. okay, so centripetal force हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? m v squared by r. ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर्ड बाय आर। तो ये यहाँ पे कैसे यूज किया? देखो एम तो वैसे के वैसे लिख दिया। नेक्स्ट वी स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, वी स्क्वायर की जगह पे हमने वी क्रिटिकल लिया, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी वी सी है, राइट? ये हमने अज्यूम किया था कि उसको क्रिटिकल वेलोसिटी मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे वी स्क्वायर के यहाँ पे वी सी स्क्वायर आ गया है। नीचे आर है, आर क्या है? आर इज आर प्लस एच, स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। तो यहाँ पे डिवाइड बाय आर के यहाँ पे आर प्लस एच आ गया। ओके, सो अगर तुम्हें ये फर्स्ट इक्वेशन अच्छे से समझ गया, देन द रिमेनिंग टू स्टेप्स इज जस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स। ओके, और यू नीड टू रिमेंबर दिस, कोई भी सैटेलाइट अगर हाइट एच पे चला जाता है अबव अर्थ सरफेस, उसको एक फोर्स नीचे खींचेगा विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आना चाहिए, नीचे तो आता है नहीं, वो तो इसी ऑर्बिट में रहता है। वो इसी ऑर्बिट में क्यों रहेगा? बिकॉज इट हैज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एम वी स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में होता है। ओके, सो बस उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दो, वी स्क्वायर के यहाँ पे वी सी स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल आर के यहाँ पे कैपिटल आर प्लस एच आ जाएगा, बिकॉज स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। ओके, एंड बस दोनों को इक्वल कर दो कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, राइट? तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी ज्यादा होगा तो उस तरफ चले जाएगा, अगर समझो ग्रेविटी ज्यादा है तो नीचे आ जाएगा, समझो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो बाहर उड़ के चला जाएगा। तो दोनों जब इक्वल होंगे तो ही ऑर्बिट में घूम पाएगा। So if you're clear with the first equation, then everything becomes easy. Okay, so I've cleared everything, and yes, so यहाँ पे if you see small m and small m gets cancelled. What is small m? It is the mass of the satellite. So small m cancel हो जाता है. Capital M is the mass of the Earth. Capital R is radius of Earth, and h is the height above the Earth's surface of satellite. So small gets cancelled. यहाँ पे r plus h है, यहाँ पे r plus h the whole square है, तो ये r plus h और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ r plus h बच जाएगा। सो वीसी स्क्वायर वैसे के वैसे रह गया, ये m और ये m कट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल G कैपिटल M रह गया। ये r plus h और ये r plus h the whole square कट हो जाएगा, तो ये r plus h गायब और यहाँ पे सिर्फ एक r plus h बच जाएगा। सो दैट्स व्हाट यू गेट। ये वीसी स्क्वायर का फॉर्मूला मिला, राइट? वी वांट फॉर्मूला फॉर वीसी which is critical velocity, so you just take square roots on both sides, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाएगा। so that is your formula for critical velocity. That's how you derive critical velocity. Okay, write the assumptions first. After writing the assumptions, write this first equation using the logic. अच्छा, यहाँ पे अगर सैटेलाइट है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड फिर बाद में थोड़ा सा सॉल्व कर दो एंड यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे सारे सिंबल्स का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। व्हाट इज कैपिटल जी? इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, उसका वैल्यू पता होना चाहिए। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, उसका भी वैल्यू पता होना चाहिए। एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट, ओके, अर्थ के सरफेस के कितने ऊपर वो सैटेलाइट जा रहा है, दैट इज योर स्मॉल एच। एंड आर प्लस एच इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। ओके, सो आर प्लस एच, देखो ये पूरा का पूरा आर प्लस एच है। ओके, और रादर यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा आर प्लस एच है, तो ये जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का उसका रेडियस आर प्लस एच है। ओके, so that's what they mean by writing r plus h is equal to radius of orbit of the satellite. So you need to remember this formula and you need to remember the meaning of each and every symbol in this formula. Okay, now let us see some properties of critical velocity. So it can be seen that the critical velocity does not depend on mass of the satellite. Okay, so कितना velocity, critical velocity उसको देना पड़ेगा, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। ओके, उसका समझो मास 10 kg है या 100 kg, उससे फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है? उसका हाइट से फर्क पड़ता है। ओके, क्या हाइट है उसका, उस पर डिपेंड करेगा क्रिटिकल वेलोसिटी
कितना होगा। ओके, एंड अगेन रिमेंबर व्हाई इज क्रिटिकल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दे दिया तो अर्थ में आके गिर जाएगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो अर्थ से बाहर चला जाएगा, बट वो ऑर्बिट में नहीं रहेगा। ऑर्बिट के लिए उसको एक स्पेसिफिक वेलोसिटी देना पड़ता है विच इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, और वो क्रिटिकल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। ऑल्सो इफ यू नोटिस, यहाँ पे हाइट डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, विच मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर। ओके, सो अगर हाइट को अगर तुमने इंक्रीज किया तो कम क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा, अगर तुमने हाइट को डिक्रीज किया तो ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। एक ज्यादा हो गया तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा होगा तो पहला वाला कम। सो as height of the satellite's orbit from the earth's surface increases, the critical velocity decreases। तो जितना ज्यादा हाइट उतना कम क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ेगा for putting it in orbit। Depending on the height of the satellite's orbit above Earth's surface, the satellite orbits are classified as below। Okay, so कितना हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कौन सा ऑर्बिट के ब्रैकेट में वो आता है। ओके, हाई अर्थ, मीडियम अर्थ या लो अर्थ। So let's start looking at high Earth orbits first. Okay, here you can see different orbits। high orbit सबसे बाहर है, high Earth orbit सबसे बाहर है, उसका रेडियस सबसे बड़ा है, मिडल अर्थ बीच में है एंड लो अर्थ सबसे पास में अर्थ के। ओके, so if height of the satellite's orbit above Earth's surface is greater than or equal to 35,780 kilometers, that's huge, right? कितना बड़ा नंबर है सोचो ये। अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस ही 6,400 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 35,780 किलोमीटर की बात हो रही है, और उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा अगर हाइट होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर तो हम उसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ओके, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर above Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution। तो अगर इतने ज्यादा हाइट पे होगा कोई सैटेलाइट तो उसको एक रेवोल्यूशन, पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगने वाला है? अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे लगने वाले हैं। We know that the Earth also takes almost 24 hours for Earth revolution। We also know कि हमारा जो अर्थ है उसको एक रेवोल्यूशन के लिए 24 घंटे लगते हैं, तो जो हाई अर्थ ऑर्बिट है उसको एक रेवोल्यूशन के लिए भी 24 घंटे लग रहे हैं और अर्थ के रोटेशन को भी 24 घंटे लग रहे हैं, बराबर। What this means is if the satellite is revolving in an orbit parallel to equator, okay, equator के parallel होगा अगर उसका orbit, the time of revolution of Earth around itself and that of satellite to revolve around the Earth being the same, the satellite will appear to be stationary with respect to the Earth। okay, क्या हो रहा है? जिस स्पीड से या फिर जितना टाइम हमारे अर्थ को एक रोटेशन करने के लिए लगता है, सेम टाइम उस सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन करने के लिए लग रहा है। तो अर्थ से अगर तुम उस सैटेलाइट को देखोगे ऐसा लगेगा कि वो सेम जगह पे, वो मूव ही नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। ओके, सो आई विल शो यू एन एनिमेशन व्हिच विल क्लियर थिंग्स अप फॉर यू। सो ऐसा लगेगा अगर तुम यहाँ से देखोगे इस सैटेलाइट को, तुम्हें लगेगा कि ये सैटेलाइट मूव ही नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी है। वही क्या, स्टेशनरी यानी मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो तुम यहाँ से देखोगे सैटेलाइट जरा भी मूव नहीं कर रहा है, बट अगर बाहर आके देखोगे, अर्थ के बाहर आके देखोगे, तो तुम्हें पता है कि काफी ज्यादा स्पीड पे मूव कर रहा है। और क्योंकि वो हमेशा उसका उसका जो टाइम पीरियड है और अर्थ का रोटेशन का जो टाइम पीरियड है सेम है, इसलिए हमेशा ऐसा लगता है कि वो सेम जगह पे है, बट एक्चुअली वो काफी फास्ट घूम रहा है। ओके, for a passenger in one vehicle, another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary। This is what happens here also। okay, so तुम एक गाड़ी में जा रहे हो और तुम्हारे बाजू में दूसरी गाड़ी आ गई सेम वेलोसिटी में जो जा रही है, तो तुम्हें लगेगा कि वो गाड़ी और तुम लोग दोनों स्टेशनरी हो, राइट। अगर तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, दूसरी गाड़ी तुम्हारे बाजू में आ गई सेम स्पीड में, तो तुम्हें लगेगा कि तुम लोग स्टेशनरी, तुम लोग मूव नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअली दोनों गाड़ी काफी स्पीड में मूव कर रहे हैं, राइट। सो ऐसा ही लॉजिक है यहाँ पे भी। These satellites are therefore called as geosynchronous satellites। okay, geosynchronous satellites क्यों? क्योंकि जियो मतलब क्या, अर्थ, सिंक्रोनस यानी साथ में, तो ये अर्थ के साथ में ही घूमते रहते हैं, राइट, इसलिए इसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, since these satellites are stationary with reference to earth, they can observe a specific portion of earth continuously। क्योंकि अर्थ के किसी भी एक पार्ट के ऊपर जाके वहीं पे रहेगा, वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो बस एक ही जगह को अगर तुम्हें बार बार कंटिन्यूसली चेक करते रहना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है,
कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करना है, तो तुम ऐसे हाई अर्थ ऑर्बिट्स को यूज कर सकते हो. ओके, therefore they are used in applications like meteorology यानी ऊपर जो सैटेलाइट भेज के हम लोग वेदर का डेटा कलेक्ट करते हैं, और वेदर का डेटा कलेक्ट करके हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि अच्छा कल कितनी बारिश हो सकती है, कल टेम्परेचर क्या हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसको हम बोलते हैं meteorology. Okay, so they are used in applications like meteorology and for carrying signals for telephone, television, radio, etc. सिग्नल्स भी कैरी करने होंगे तो हाई अर्थ ऑर्बिट्स में डालते हैं, तो जियो सिंक्रोनस होगा, अर्थ के साथ साथ घूमेगा. ओके, so that was about high earth orbits. Let's move on to medium earth orbit. If the height of the satellite orbit above Earth's surface is between 2000 kilometers and 35,780 kilometers, the orbits are called as medium Earth orbits. Okay, 2000 किलोमीटर और 35,780 किलोमीटर के बीच में अगर उसका हाइट होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो हम उसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे. The geostationary satellites orbit above the equator. I'm going to read that sentence one more time. The geostationary satellites orbit above the equator. Geostationary, देखो पहले हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, जियोसिंक्रोनस. सिंक्रोनस यानी साथ में. सो जियो यानी अर्थ के साथ में जो मूव कर रहा है उसको जियो सिंक्रोनस बोल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज जियोस्टेशनरी यानी अर्थ से ऐसा लग रहा है कि सेम जगह पे वो मूव ही नहीं कर रहा है. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ द सेम, बट दोनों का मीनिंग हल्का सा चेंज हो जाता है. सिंक्रोनस यानी साथ में, स्टेशनरी यानी मूव नहीं कर रहा. ओके, सो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो लोग इक्वेटर के ऊपर ऑर्बिट करते हैं. ओके, इक्वेटर के ऊपर ही होंगे वो हमेशा. These are therefore not useful to study polar regions. तो अगर समझो मुझे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल को स्टडी करना है और मेरा सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही है, तो चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला है, राइट? For this purpose, elliptical medium Earth orbits are passed over the polar region, and these orbits are called as polar orbits. Okay, तो तुम्हें polar region को भी स्टडी करना होगा, तो तुम क्या करोगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट यूज करोगे जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होंगे. ओके, मीडियम अर्थ कब बोलेंगे, जब इस 200,000 एंड 35,780 किलोमीटर के बीच में अगर उसका हाइट होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो मीडियम अर्थ बोलेंगे. और उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालते हैं ताकि पोलर रीजन्स को भी हम कवर कर सके. सो लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस. यस, यहाँ पे इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, अगर तुम इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालोगे तो तुम्हें यहाँ से ऊपर का पोलर रीजन भी दिखेगा, नीचे का पोलर रीजन भी दिखेगा, और बीच में जो इक्वेटोरियल पार्ट है वो भी दिखेगा. तो यहाँ अगर तुम ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में डालोगे किसी भी सैटेलाइट को, तुम्हें पूरा का पूरा अर्थ काफी अच्छे से दिखेगा. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट. सो ये जनरली जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में डालते हैं सैटेलाइट्स, वो जनरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स तो काम नहीं आने वाले पोलर रीजन्स के लिए, तो इसलिए हम लोग इलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स यूज करने वाले जो पोलर रीजन के ऊपर से पास होंगे, और फिर हम पोलर रीजन्स को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे. सो ऐसे ऑर्बिट्स को भी कॉल एज पोलर ऑर्बिट्स. इन दीज ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स. 2 से 24 घंटे के बीच में वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता है. ओके, some of these satellites revolve in circular orbits at a height of around 20,200 kilometers above Earth's surface. ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स जो सर्कल में भी मूव करते हैं, उनका ऑर्बिट सर्कुलर होता है, और कौन से हाइट पे होते हैं, 2200 किलोमीटर के हाइट पे. ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट्स. ओके, तो जीपीएस जो हम यूज करते हैं, तुम जब भी गूगल मैप्स यूज करते हो तो तुम्हारा जो लोकेशन है वो गूगल के सर्वर्स तक जो सेंड कर रहा है वो सैटेलाइट इज मोस्ट प्रोबेबली अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट. ओके, ऐसे बहुत सारे 3-4 एटलीस्ट मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स एक साथ तुम्हारा लोकेशन पिन पॉइंट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर्स तक जाता है. ओके, so that was about medium earth orbits. Last is low earth orbits. Okay, so if the height of the satellite orbiting above the earth's surface is between 180 kilometers and 2000 kilometers, the orbit is called as low earth orbit. Okay, so तुम्हें रेंज बाय हार्ट होना चाहिए. ओके, 35,780 से ऊपर तो हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर 2000 से 35,780 के बीच में आ गया तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एंड 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में आ गया तो लो अर्थ. 180 से कम हो तो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा, तो उसको बोल नहीं सकते सैटेलाइट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से उसका स्पीड कम होते जाएगा और फाइनली वो जल के राख हो जाएगा. ओके,
सो 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में जो हाइट पे सैटेलाइट्स होंगे उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ओके, वो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है ऐसा हम बोल सकते हैं। The satellites used for scientific experiments and atmospheric studies revolve in low Earth orbit. So अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है तो इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर, इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट्स में होंगे। एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी करना होगा तो तुम एटमॉस्फेयर से जितना पास में रहोगे उतना बेटर होगा, राइट। सो उसके लिए भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डालते हैं। Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around 90 minutes. Okay, so सिर्फ 1.5 घंटे में एक रेवोल्यूशन हो जाता है। जस्ट इमेजिन, पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा देता है सिर्फ 1.5 घंटे में, 90 मिनट्स में। तो इतना फास्ट वो मूव कर रहा है। इतना फास्ट क्यों मूव करता है? क्योंकि वो स्पेस में है, राइट। तो स्पेस में एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो जितना चाहिए उतना स्पीड बढ़ा सकते हैं। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, कोई ऑपोजिशन ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो इतना फास्ट मूव कर सकता है। सो दीज सैटेलाइट्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट इन above our Earth's atmosphere. Okay, so examples they've given: International Space Station and Hubble Telescope also revolve in low Earth orbit. So Hubble Telescope is one of the telescopes which is in space. हमने उसको स्पेस में डाल के स्पेस में से हम उससे फोटोज लेते हैं। हबल टेलीस्कोप, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव टेलीस्कोप एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, कि हबल टेलीस्कोप को वो लोग ने मैन्युफैक्चर करके ऑर्बिट में डाल दिया। ऑर्बिट में डालने के बाद फोटोज लिए और चेक किया तो फोटोज अच्छे नहीं आ रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा फोटोज अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तब पता चला कि वहां पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग था वो छोटे से एकदम हल्के से ऑफ था, हल्के से मेजरमेंट से ऑफ था। ओके, क्योंकि वो ऑफ था इसलिए फोटोज अच्छे आ नहीं रहे थे। तो लोग ने इतने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके वो लोग ने वो सैटेलाइट टेलीस्कोप बनाया था। वो टेलीस्कोप को इतना और ज्यादा खर्चा करके सैटेलाइट पे डाल के वो लोग ने ऑर्बिट में डाला था, ताकि बीच में कोई क्लाउड्स ना आ जाए, बीच में कोई पार्टिकल ना आ जाए। इतने पैसे डालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उनको पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा ऑफ था, इसलिए फोटोज क्लियर नहीं आ रहे। तो एक्चुअली वो लोग ने एक और स्पेस मिशन भेजा था जहां पे वो लोग ने स्पेस में उस टेलीस्कोप को ठीक किया था एंड फिर बाद में अच्छे फोटोज क्लिक करना शुरू किया हबल टेलीस्कोप ने। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू रीड अबाउट ऑन द इंटरनेट। ओके, हाउ हबल टेलीस्कोप was repaired in the space में उसको रिपेयर किया था। It was a very difficult task. And I told you that at any given time there are a few humans who are not living on Earth. They live in international space stations. हमेशा 4-5 लोग तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे होते हैं। ओके, सो अभी भी हम जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ह्यूमंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हैं। ओके, ऑल्सो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग बैठे हैं वो लोग बहुत हाई स्पीड में जा रहे हैं और वो लोग एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? अराउंड 90 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है? 24 आवर्स में वो लोग अराउंड 15 to 16 टाइम्स चक्कर मार रहे हैं। ओके, सो 24 आवर्स में कम से कम 15 से 16 बार वो लोग चक्कर मार रहे हैं अर्थ का। यानी 24 आवर्स में 15 वो लोग सनराइज देख रहे हैं, 15 वो लोग सनसेट देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट इफ यू आर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तुम इतना फास्ट मूव कर रहे हो स्पेस में कि तुम्हें 24 आवर्स में 15 बार सनराइज देखने मिलेगा, 15 बार सनसेट देखने मिलेगा। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? एंड वो इतना फास्ट घूम रहा है, उसको दिखेगा कि अच्छा 40 मिनट्स आधा अर्थ दिखेगा जो जहाँ पे रात है, उसके बाद में वापस घूम के आएगा, आधा अर्थ दिखेगा जिसमें दिन है। तो ऐसा हर आधे घंटे में 40 मिनट में वो चेंज होते रहता है। So that's again an interesting thing about International Space Station. Okay, let's move ahead. I can talk about all this for hours together. Okay, I don't want to make this video very long, but you should explore it by yourself. Okay, you can explore International Space Station, you can explore Hubble Telescope by yourself. So that is it. Let us solve some end of chapter questions. First, given on page number 144, question number 3, answer the following questions. What is meant by the orbit of a satellite? Orbit का मतलब क्या? मैंने तुम लोग को हिंदी में बता दिया. Can you translate that in English and write the answer by yourself? You have to check that. On what basis and how are the orbits of artificial satellites classified? तो ये हमने इनफैक्ट आज का पूरा लर्निंग सेशन उसके बारे में था। वो जो 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स के, वो तुम्हें लिखने हैं और उनका डिस्क्रिप्शन देना है। दैट वाज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स, राइट, कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को तुम एक्सप्लेन करने आना चाहिए, सो तुम्हें लिखना है। ओके, सो सेकंड वाला छोड़ दो फिलहाल के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो एटलीस्ट
खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो. ओके, एक्सप्लेन इट टू यॉल इन हिंदी, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. ओके, एक सेंटेंस पे आंसर लिख दो एटलीस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन का. So I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, 5 seconds are up. I hope you try to write the answer to at least the first question by yourself. Okay, what is meant by the orbit of a satellite? So the answer to the first question is the path followed by a satellite while revolving around the planet is known as the orbit of the planet. Okay, orbit of the planet nahi aana chahiye, orbit of the satellite aana chahiye. Okay, let me correct that. Okay, so जो पाथ फॉलो करता है सैटेलाइट, जब वो एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसको हम उस सैटेलाइट का ऑर्बिट बोलते हैं. सो दैट वाज योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, आज हमने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है उसमें. सो ऑन व्हाट बेसिस एंड हाउ आर द ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्लासिफाइड? उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग? हाइट ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर. ओके, जो हाइट होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे हाई अर्थ, लो अर्थ या फिर मीडियम अर्थ पे. सो पहले वो एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं अलग अलग सैटेलाइट के ऑर्बिट्स को, और फिर बाद में तीनों के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करना है जितना भी तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, इफ इट इज नॉट वेरी क्लियर ऑन योर मोबाइल फोन स्क्रीन, देन यू कैन जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में जितना भी लिखा है हाई अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया. ओके, तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट्स काफी बड़ा आंसर है. सो ये कंटिन्यू हो रहा है. Similarly for medium earth orbits you have to write a few points, and similarly for low earth orbits you have to write some points. Okay, so high earth, medium earth, low earth orbits, इसके बारे में टेक्स्ट बुक में जितना भी दिया हो सब कुछ बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग 5 मार्क के लिए. सो यू शुड बी रेडी. ये सब नंबर्स बाय हार्ट होने चाहिए. ओके, कि कौन से हाइट के लिए मीडियम अर्थ बोलते हैं, अगर मीडियम अर्थ में हो तो कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सब नंबर्स वगैरह भी बाय हार्ट होनी चाहिए. कौन सा पोलर सैटेलाइट हो सकता है, कौन सा जियो स्टेशनरी हो सकता है, कौन सा जियो सिंक्रोनस हो सकता है, ऑल दैट शुड बी बाय हार्टेड. ओके, सो दैट इज इट फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन. Here's your second question. Okay, answer the following questions. Why are geostationary satellites not useful for studying polar regions? And this question was given in July 2019, I think, for 2 marks. Okay, so geostationary satellites को से हम लोग polar regions क्यों नहीं study कर सकते? Very simple answer. Satellites revolving around the earth with the time period same as that of rotation of the earth are called as geostationary satellites. So first point में क्या किया है, geostationary satellites का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसको एक्सप्लेन करिए कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशन के इक्वल होता है. ओके, दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. अगेन जियोस्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस, बोथ ऑफ देम आर सेम. ओके, अगर जियोसिंक्रोनस होगा तो जियोस्टेशनरी होगा, जियोस्टेशनरी तो जियोसिंक्रोनस होगा. सो अगर अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है तो वो अर्थ से ऐसा लगेगा कि वो एक ही जगह पे रुका है, इसलिए जियो स्टेशनरी. स्टेशनरी यानी नॉट मूविंग. ओके, और वो तभी होगा जब उसका जो रोटेशन का पीरियड है वो भी 24 आवर्स है. ओके, these satellites revolve in orbits parallel to the equator of the earth at height of around 35,780 kilometers from the surface of the earth. Okay, so ये हमेशा इक्वेटर के आजू बाजू होती है, इक्वेटर के पैरेलल होगा तो सिर्फ इक्वेटर को अच्छे से देख पाएगा. और कौन सी हाइट से देख रहा है? 35,780 किलोमीटर की हाइट से देख रहा है above surface of the earth. As the orbits of such satellites are always above the equator, these satellites are not useful for studies of polar region. तो अगर ये पोलर रीजन के पास जा ही नहीं पा रहा है, पोलर रीजन को देख ही नहीं पा रहा है सैटेलाइट, तो वहां का रीजन वो स्टडी नहीं कर पाएगा. राइट, सो दैट वाज योर आंसर. ओके, सो एक्चुअली ये वन लाइन आंसर था. द एक्चुअल आंसर इज गिवन इन द थर्ड पॉइंट, पर क्योंकि अगर ये 2 मार्क के लिए आगे तुम एक लाइन नहीं लिख सकते, तो तुम्हें पहला इंट्रोडक्शन देना है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का डेफिनेशन बता दो, कौन से हाइट पे होता है ये बता दो, इक्वेटर के पैरेलल होता है उसका ऑर्बिट ये बता दो, फाइनली विल राइट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर लास्ट पॉइंट, विच इज वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर होता है तो पोलर रीजन को नहीं पढ़ पाएगा. ओके, so that is it for your second question. This question was asked in July 2019 for 2 marks. Okay, hence I am saying end of chapter questions are very important. इसमें से around 40-50% तो definitely आता है बोर्ड एग्जाम में.
So that is it for this learning session. I hope you have accomplished today's learning objectives. Just check. Can you explain the characteristics of different orbits of artificial satellites? हाई अर्थ ऑर्बिट का क्या हाइट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट का क्या हाइट होता है, कौन सा वाला जियो स्टेशनरी होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट किस में होता है, so on and so forth. If you can answer these questions and if you can explain different characteristics of different orbits, then you have achieved today's first learning objective. Can you derive the expression for critical velocity? वो diagram draw करके assumptions लिखना, फिर gravitational force equal to centripetal force, फिर taking square root on both sides. If you can do that and derive the expression for critical velocity, then you have achieved today's second learning objective. Okay. So just check for yourself whether you have accomplished the learning objectives or not. So that is it for this learning session. I hope you enjoyed it, especially the Hubble telescope and the International Space Station part. If you are interested, if you are feeling curious, do search it on YouTube, or you can even read it on Google. Okay, read about them on Google. So that is it for this learning session. I hope we'll see each other in the next one. Till then, bye and